next chapter, AC circuits. So in textbook page number 304, question number 7, a device Y is connected across an AC source of EMF E is equal to E naught sin omega t. This is the EMF equation given to us, and the current through Y is given as I equal to I naught sin omega t plus pi by 2. EMF is given, current is given. So if you see current is given as plus pi by 2, so we know that whenever there is a current plus pi by 2, that means it is a case of a capacitor. If it is a current with minus pi by 2, that is a case of an inductor, and if there is no phase, then that is a resistor. So this given case is of a capacitor. The first question is identify the device Y. So what is the device? The device Y is a capacitor. So answer will be capacitor. In case of capacitor, we have capacitive reactance. So capacitive reactance XC is given by 1 by omega C. So 1 by omega formula is 2 pi f. So this will be equal to 1 divided by 2 pi fc. Second case, draw the graph showing the variation of EMF and current with the time over one cycle of AC circuit for Y. So if we know that this is the EMF in this case, if this is the EMF for one cycle, the current will be given as when the EMF is minimum, the current is maximum, and vice versa case. So if we change that, so in that case I will get it something like this. So this black one is current and the red color is EMF. Okay. So the black one is current and the red one is EMF. We will label them. So this one is EMF. So here I will label here in negative axis minus E naught. Upar wala will be plus E naught, negative wala will be minus E naught. So the red one is EMF, the black one is current. Okay. Next, see how does the reactance vary with frequency. So we know that reactance, if you see reactance means XC, how XC varies with frequency. So XC is inversely proportional to frequency. They are saying that draw a graph, show graphically. So how will you draw a graph? So XC versus F graph, this will be like this, inverse relation, it will go like this. And D, draw the phasor diagram for the device. So phasor diagram will be like this. In case of, this is time axis. In case of capacitor, the current leads, so the current is leading, so this will be I naught. The EMF lags, so this will be E naught. And दोनों में phase कितना होगा? Pi by 2. So this is the D part. If the effective current, whenever there is a word effective current मतलब IRMS current in a 50 cycle, whenever there is a word 50 cycle, that means frequency. So frequency is given as 50 Hertz, IRMS is given as 5 ampere. Whenever there is the word effective current, that is IRMS. Whenever there is effective potential difference, that is ERMS. So that is given as 5 ampere. What is the peak value? Peak value means I naught we are supposed to find. First case. Second case, they are telling when time t is equal to 1 by 600. When time is 1 by 600, then find the value of current. So first I know that I have the formula IRMS equal to I naught by root 2. So therefore I can write I naught equal to IRMS into root 2. So therefore I naught will be equal to RMS value is 5, root 2 value is 1.414. Okay, 1.414. So when you multiply this, you will get a 7.070 ampere. That is the peak value. Second case, they are for asking the value of current when time is given as 1 by 600 second. So when current is when time is 1 by 600 second, so we know that current equation I is equal to I naught sin omega t. So I equal to I naught value we have already found out, 7.00 into sin omega. Omega is not given, but we know that omega is what? 2 pi f into t. Okay. So therefore I will be equal to 7.07 into sin 2 pi f. 2 into pi into 50. So 2 into 50 is 100. So this will be 100 pi multiplied by time is given as 1 by 600. So 2 zeros cancel. So pi by 6. Sin pi by 6 means sin 30. Sin 30 is half. So I will be 7.07 into half. So 7.07 into half will be 3.535 ampere. Next, a light bulb is rated as 100 watt. So power is given as 100 watt for 220 volt AC supply. So ERMS value is given as 220 volt. AC supply having 50 Hertz. So frequency is given as 50 Hertz. Calculate the resistance. First case they are asking find the value of resistance, and second case they are asking find the value of IRMS, value of current. So I know that power equal to ERMS into IRMS. We know this. So therefore IRMS will be equal to P upon ERMS. So the value of power is 220.
sorry, the value of power is 100, so 100 divided by 220, so 0 0 cancel, this will be 5 by 11 ampere. So this will be 5 by 11 ampere, so IRMS equal to 5 by 11. So you can keep it here only, or you can convert it to ratio, even that is okay. Then second case they are asking find the value of RMS current. RMS current पता करने के लिए I know that ERMS, for second case ERMS equal to, okay, I have first found out this thing. Okay, first हमने IRMS पता किया है, so IRMS equal to 5 by 11 we have got. Now resistance नहीं पता किया हमने, तो resistance के लिए we have formula ERMS equal to IRMS into R. So therefore R will be equal to ERMS divided by IRMS. So R will be equal to ERMS का वैल्यू कितना है, ERMS का वैल्यू है 220 एंड IRMS का वैल्यू है 5/11. So 11 ऊपर जाएगा ना, ठीक है, 11 will go up. So when you solve this you get 484 ohms. On solving you get this as 484 ohms. Next, a 15 microfarad capacitor. So the value of C is given. The value of C is given 15 into 10 ka power minus 6 farad is connected to 220 volt. So ERMS value is given 220 volt with frequency is given as 50 hertz. Find the capacitive reactance XC. We are supposed to find the value of I naught. We are supposed to find the value of RMS. Current value का RMS and peak दोनों पता करना है. First let us solve this much. So I know that XC is equal to, the first case XC is equal to 1 by omega C, so that is equal to 1 by 2 pi FC. So just put the value, so therefore XC will be equal to 1 divided by 2 into 3.14 into 50 multiplied by C का value 15 into 10 ka power minus 6. So when you solve this you get the value of XC as 212 ohms. ठीक है, you take the reciprocal, multiply, take log and solve, you get the value as 212 ohm. Next case we are supposed to find I naught and IRMS. To find I naught and IRMS, so we know there is equation that I naught is equal to C E naught omega. This is our formula from the derivation that we have got. ठीक है, so therefore I naught will be equal to, E naught को हम यहाँ पे लिख देंगे, E naught को हम क्या लिखेंगे, ERMS into √2. E naught को लिखेंगे ERMS into √2 into omega. ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2 pi f. So therefore I naught will be equal to C ERMS into √2 into ओमेगा के जगह पे आएगा 2 pi f. ठीक है, ये हमारा फाइनल फार्मूला. अब इसमें वैल्यू डालेंगे, so I naught will be equal to C. The value of C is how much, 15 into 10 raised to minus 6 into ERMS. ERMS is given as 220 into √2 का वैल्यू is 1.414 into 2 into 3.14 into 50. So when you solve this, when you put all the values you get the value of peak current. ठीक है, so peak current का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.47. ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 1.47. थर्ड केस RMS करंट पता करना है, तो IRMS इक्वल टू I नॉट बाय √2. सो I नॉट का वैल्यू मैंने अभी बताया 1.47 डिवाइड बाय √2 का वैल्यू 1.414. सो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट समथिंग अराउंड 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, 1.0 समथिंग कुछ तो आएगा, 1.04 नियरली. ठीक है, RMS. इतना यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक. इसके आगे क्या बोले, if the frequency is doubled what will happen to the capacitive reactance and current. So this is the theory question. If the frequency is doubled, so we know that if we see very carefully the capacitive reactance and frequency, there is a relation between capacitive reactance and frequency. I'll show you here. So what do you see, XC versus frequency, what is the relation, दोनों में inverse relation है. So if एक frequency double हो जाएगा, if the frequency is doubled, so what will happen, the capacitive reactance को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाफ. ठीक है, सो दैट विल बी हाफ्ड. इसका रीजन क्या आएगा, सिंस दे आर इनवर्सली रिलेटेड. ये थ्योरेटिकल है, यू हैव टू राइट थ्योरी इन वन लाइन. सिंस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम हाफ. एंड सेकंड केस व्हाट विल हैपन टू करंट. सो वी नो दैट करंट वर्सेस ओमेगा, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या यहाँ पे देखो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रहा है. करंट एंड फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डबल द करंट विल बिकम डबल. सो हियर दैट इज योर आंसर, दैट विल बिकम डबल. 15th, an AC circuit consists of an inductor of inductance 2 Henry, L value is given as 2 Henry, and if the current is represented by a sine wave मतलब I naught का वैल्यू दिया है 0.25 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है, F का वैल्यू दिया है 60 हर्ट्ज. कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर. इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ERMS का वैल्यू पता करना है. ठीक है, सो वी नो दैट वेन एवर देयर इज अ इंडक्टर गिवन, सो वी नो दिस वैल्यू I naught इक्वल टू E naught अपॉन ओमेगा L होता है. सो ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे E naught अपॉन 2 pi FL. बट इफ यू सी मुझे I naught दिया है बट E naught नहीं दिया है, मुझे ERMS पता करना है.
सो आई कैन राइट आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट के जगह पे हम लिखेंगे ई आर एम एस इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ एल. ठीक है, सो दिस इज माई फाइनल फॉर्मूला. आई नॉट विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ एल. Now put the value. So first rearrange कर लो. So ERMS will be equal to I naught into 2 pi FL, ठीक है, divided by √2. अभी वैल्यू डाल दो इसमें. So I naught का वैल्यू दिया है 0.25 multiplied by 2 into 3.14 multiplied by this is given as 60 multiplied by L का वैल्यू कितना है 2 and divided by 1.414. So इसको सॉल्व करो, you get this 133, approx 133 आंसर आ जाएगा वोल्ट में. Alternating EMF, this is a very important sum. 16 and 17 are very important. Alternating EMF is given E equal to 220 sin 100 pi t. इसको compare करो. You compare this equation with E equal to E naught sin omega t. तो क्या मिलेगा? E naught के जगह पे मिलेगा 220. E naught के जगह पे मिलेगा 220. ओमेगा के जगह पे मिलेगा 100 पाई. ठीक है, L का वैल्यू दिया है, नेक्स्ट लाइन में L का वैल्यू दिया है 1 बाई पाई हेनरी. L का वैल्यू दिया है. राइट द इक्वेशन फॉर द करंट. यू हैव टू राइट द इक्वेशन. सो इक्वेशन क्या है हमारा? जब इंडक्टर लगाया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इंडक्टर लगाया, तो इंडक्टर का करंट का इक्वेशन लिखेंगे. इंडक्टर का करंट का इक्वेशन इंडक्टर वाले डेरिवेशन में देखो, यू विल सी इन द डेरिवेशन दैट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है. ये हमारा फॉर्मूला है फ्रॉम द डेरिवेशन. ठीक है, इंडक्टर वाले डेरिवेशन में करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. दैट इज अवर फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ पे I नॉट निकालेंगे पहले. ओमेगा तो पता है मुझे, सो I नॉट पहले निकालेंगे. तो I नॉट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, I नॉट निकालने के लिए वी हैव लास्ट टाइम जो फॉर्मूला यूज किया था I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा L. ठीक है, सो वो यूज कर देंगे. तो E नॉट का वैल्यू दिया है 220, ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई, और L का वैल्यू भी है 1 बाई पाई. सो पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 22 अपॉन 10 विल बी 11 अपॉन 5. सो इतना रख दो इसको, 11 अपॉन 5 रख देंगे. 11 अपॉन 5 मतलब 2.2 एम्पियर. सो दिस इज 2.2 एम्पियर I नॉट का वैल्यू. हमें सिर्फ इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट सिंपली राइट द इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दो सबका. सो I विल बी इक्वल टू I नॉट का वैल्यू अभी हमने निकाला 2.2 इंटू साइन 100 पाई. ओमेगा का वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में. ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. दैट इज योर आंसर. ये हमारा आंसर है. व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एसी गैल्वेनोमीटर. रीडिंग इन द एसी गैल्वेनोमीटर मतलब IRMS का वैल्यू पता करना है. सो अगेन IRMS कितना होता है? IRMS होता है I नॉट बाई √2. I नॉट का वैल्यू 2.2, √2 का वैल्यू 1.414. तो इसको सॉल्व करो, 1.5 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा. Sum number 17, AC circuits. The 25 microfarad capacitor. So we have the value of C is given to us as 25 microfarad. So that will be written as 25 into 10 raised to minus 6 farad. 0.10 Henry inductor. L is given. R is given to us as 25 ohm is given to us with AC source. Again there is a equation given E equal to 310 sin. So you compare this. You compare this with E equal to E naught sin omega t. So what do you get? E naught का वैल्यू मिलेगा 310, ओमेगा का वैल्यू मिलेगा 314. ठीक है, 314 इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, देन 5 things are asked. The first things they are asking is what is the frequency. The second thing that they have asked is what is the reactance. Now since they have not mentioned whether it is a capacitive or inductive, so you find the difference of both. So you find XL minus XC. I am writing in mod because we don't know XL बड़ा होगा XC बड़ा होगा. बड़े में से छोटा माइनस करना है, छोटे वैल्यू में से बड़ा माइनस करना है. We do not know. It can be anything. अगर छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू माइनस करना है तो आंसर विल बी नेगेटिव. We will not write negative. So we have already taken mod. ठीक है, पहले से mod लेके चलो, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए. ठीक है, impedance is Z. तो Z we are supposed to find. Next what they are asking is current. तो D current they are asking, and lastly they are asking is phase. So these 5 things are been asked. Very important 4 mark sum. ठीक है, this is a very important numerical. So not necessary exam में सब पूछेंगे, कोई भी 2 या 3 चीजें पूछ लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, but not necessary they will ask all. ठीक है, सब पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछा तो भी any 2 or 3 things they will ask. Okay, so let us now first start with frequency. So how will you write with frequency? So omega given है, we know that in given हमें omega दे रखा है, omega दिया है. So first case omega equal to 2 pi f. So f आ जाएगा यहाँ से, f कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 pi. See, don't expect I am solving everything.
आई एम गिविंग द फॉर्मूला, इट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व एंड अराइव एट अ करेक्ट आंसर. ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन, ओनली कैलकुलेशन पार्ट यू आर सपोज्ड टू डू, सो काइंडली डू दैट मच. So omega value is given 314 divided by 2 into 3.14. So when you solve this much, you get the value of f as 50 hertz. Okay, after solving you get the value of 50 hertz. First case. Second case, they are asking xl minus xc. So we don't know xl, we don't know xc. So first we'll have to find xl. पहले xl का वैल्यू निकालेंगे. xl होता है ओमेगा l. So ओमेगा का वैल्यू मुझे मिला है 314 and l का वैल्यू है 0.1. तो 314 into 0.1 is given as 31.4 ohm. ठीक है, xl आ गया. xc निकाल लो, xc होता है 1 by ओमेगा c. सो 1 डिवाइडेड बाय 314 इंटू c का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू कितना दिया है 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. सो यू सॉल्व दिस, यू गेट सम आंसर इन ओम्स. ठीक है, इसका एक आंसर मिलेगा. हमें क्या चाहिए, xl माइनस xc मॉड में रखा है, दोनों को माइनस करो, माइनस करके यू विल गेट दिस आंसर 95.9 विल बी योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली. यू सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर इज 95.9. नेक्स्ट, इम्पीडेंस दे आर आस्किंग. द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला. सो r का वैल्यू गिवन है, r का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, r का वैल्यू 25 दिया है. xl माइनस xc कौन सा, यही है ना, xl माइनस xc. xl माइनस xc का जो वैल्यू मिला है उसका स्क्वायर करो, उसको r स्क्वायर के साथ ऐड करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना. सो व्हेन यू टेक दैट स्क्वायर रूट यू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू 99.1. नियरली यू विल गेट दिस 99.1. ठीक है, नियरली 99.1. Next they are asking is what is the current. What is the current? So current लिखने के लिए, so what we will write in place of current, I'll just erase this much, I'll erase this value. ठीक है, current लिखने के लिए what we will write, the D part is current. So we know that ERMS equal to IRMS into Z, ये हमें पता है. ठीक है, कौन सा करंट है वो नहीं पता करना है तो of course it is RMS only. ठीक है, RMS करंट ही पता करना है. ERMS equal to IRMS into Z होता है, but we don't know what is ERMS. बट वी नो व्हाट इज ई नॉट. ई नॉट का वैल्यू पता है ना 310, अभी लिखा था हमने. ई नॉट का वैल्यू हमें पता है 310, तो वहाँ से ई आर एम एस आ जाएगा. 310 वहाँ से ई आर एम एस आ जाएगा. सो ई आर एम एस कितना होता है, ई नॉट बाय रूट 2. सो ई आर एम एस की जगह लिखेंगे ई नॉट बाय रूट 2 इक्वल टू आई आर एम एस मुझे पता करना है. जेड हमने यहाँ पे पता किया 99.1 पीछे लास्ट हमने जो सॉल्व किया. तो यहाँ से आई आर एम एस निकाल लो. सो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन जेड इंटू रूट 2. सो ई नॉट का वैल्यू कितना है, ई नॉट का वैल्यू है 310 डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू 99.1, रूट 2 का वैल्यू 1.414. इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 2.21. इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2.21 एम्पियर. एंड लास्टली व्हाट दे आर आस्किंग इज फेज. तो फेज का फॉर्मूला phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xl माइनस xc डिवाइडेड बाय r. सो xl माइनस xc का वैल्यू ये है 95.9, ये भी हमने सॉल्व किया है. तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 95.9 डिवाइडेड बाय 25. इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको डिग्री में लिखो. यहाँ पे डिग्री में नहीं लिखा है तो ये आंसर नहीं आएगा. ठीक है, यू विल नॉट गेट दिस आंसर. यू आर सपोज्ड टू फाइंड द एंगल इन डिग्री ओनली. सो 95.9 डिवाइड बाय 25 करो, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको नेचुरल टैंजेंट में, लॉग बुक में नेचुरल टैंजेंट्स है वो वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, लॉग बुक में उसका वैल्यू देखो, वो वैल्यू किधर आ रहा है, कितने डिग्री के करस्पॉन्डिंग में वो वैल्यू आ रहा है, दैट यू आर सपोज्ड टू फाइंड. सो दिस इज नॉट दैट वैल्यू, ये आंसर नहीं है. नेक्स्ट 18th, a capacitor of 100 microfarad. So the value of C is given. C का वैल्यू दिया है 100 microfarad. So that is 100 into 10 raised to minus 6 farad. Of a coil of resistance is given as 50 ohms and inductance का वैल्यू दिया है, L का वैल्यू दिया है 0.5 Henry. Is connected in series with 110 volt. तो ERMS का वैल्यू दिया है 110 volt. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज. कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट. IRMS का वैल्यू पता करना है. So I know that ERMS equal to IRMS into Z. अब Z क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? If you see the question very carefully, सब कुछ दिया है LCR. जब भी क्वेश्चन में LCR दिया है हमेशा Z यूज करना है, इम्पीडेंस. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा IRMS. IRMS equal to ERMS upon Z. तो ERMS का वैल्यू में दिया है, Z का वैल्यू कैसे आएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. अभी XL और XC का वैल्यू नहीं दिया है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट. सब कुछ नहीं देंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, XL इक्वल टू ओमेगा L. ओमेगा का वैल्यू इज 2 पाई FL. तो इसको सॉल्व करो, XL का वैल्यू मिलेगा. XC का वैल्यू कैसे मिलेगा, 1 बाई ओमेगा C, दैट इज 1 बाई 2 पाई FC. ये दोनों वैल्यूज को सॉल्व करो, दोनों को माइनस करो, स्क्वायर करके जो भी है फाइंड द वैल्यू एंड डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट दिस आंसर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर. C का वैल्यू पता करना है,
when you have a 10 ohm resistor, R का वैल्यू दिया है 10 ohm, makes a power factor. पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर होता है cos phi. पावर फैक्टर होता है cos phi का वैल्यू दिया है 0.5. Assume that 80 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई. सो ERMS का वैल्यू दिया है 80 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 100 हर्ट्ज. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये वाला भी, ठीक है. So actually there is a derivation first because we know that cos phi का वैल्यू होता है, cos phi का वैल्यू होता है r upon z. So directly ये सम को सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. cos phi का वैल्यू होता है r upon z. अगेन z में क्या यूज करेंगे? रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर. बट इफ यू सी वेरी केयरफुली, गिवन में सिर्फ c और r है, दो ही चीजों के बारे में मेंशन है. l के बारे में कुछ बोला ही नहीं. देयर इज नथिंग टोल्ड अबाउट l, सो अज्यूम l एज 0. ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है तो अज्यूम l एज 0. ठीक है, l के बारे में कुछ भी नहीं बोला. तो पहले तो z निकालेंगे. तो z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? z का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर. आई विल गो बैक. xl का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा. xl का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा l, बराबर है. तो यहाँ पे लेकिन l अगर 0 है, अगर मेरा l 0 है तो xl भी 0 हो जाएगा, राइट. सो xl का वैल्यू यहाँ से हट जाएगा. तो z के जगह पे क्या मिलेगा? रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर, ये मिल जाएगा मुझे. ठीक है. सो देयरफॉर नाउ पुट द वैल्यू यहाँ पे. सो cos phi इक्वल टू r डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर. पहले तो स्क्वायरिंग कर दो तो क्या मिलेगा इसका? cos स्क्वायर phi इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर. रीअरेंज करेंगे इसको तो रीअरेंज करने पे मिलेगा r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर phi. जो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर था उसको लेफ्ट साइड में भेज दिया. लेफ्ट साइड का cos स्क्वायर phi नीचे आ जाएगा, cos स्क्वायर के नीचे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते वैसा. अभी मुझे देखो क्या चाहिए? मुझे C चाहिए. अपना एम क्या है? वी नीड C, कैपेसिटर. कैपेसिटर मुझे किस में मिलेगा? इसमें, इस वाले टर्म में कैपेसिटर है. देखो याद रखो यहाँ पे xc का वैल्यू है ना, xc का वैल्यू 1 बाय ओमेगा c. c इधर है ना, तो c निकालने के लिए xc निकालना पड़ता है. xc कीप इट देयर ओनली. सो देयरफॉर xc स्क्वायर टू r स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर phi माइनस r स्क्वायर. जो ये वाला r स्क्वायर था इसको राइट में शिफ्ट कर दिया. ठीक है. सो क्या मिलेगा? xc स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर phi माइनस r स्क्वायर. अभी वैल्यू डाल दो. सो xc स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. r का वैल्यू कितना दिया है? 10. 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय cos phi. cos phi का वैल्यू कितना है? 0.5. 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25. 0.25 मतलब 1/4. 1/4 तो 4 ऊपर जाएगा तो इधर बनेगा 400. ठीक है, माइनस r का स्क्वायर वापस कितना आएगा? 100. सो xc स्क्वायर इक्वल टू 300. सो देयरफॉर xc कितना मिलेगा? रूट ऑफ 300. अभी अगर xc मिल गया है तो बाकी निकाल सकते हैं. तो 1 बाई ओमेगा c इक्वल टू रूट ऑफ 300. 1 बाई ओमेगा c कहाँ से आ गया? xc का वैल्यू है ना, बराबर है. तो c कितना हो जाएगा? c आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू रूट 3. ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई f दिया है ना, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई f होता है. तो पुट द वैल्यू एंड डू द कैलकुलेशन. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज. अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज फ्रॉम 0 टू RMS, मतलब I के जगह पे IRMS आना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए मुझे टाइम निकालना है. टाइम निकालना है. सो आई नो दैट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t. सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है. सो I के जगह पे क्या आएगा? IRMS. और I नॉट के जगह पे I नॉट रहेगा इनटू साइन. ओमेगा के जगह पे क्या आएगा? 2 पाई f एंड इधर आ जाएगा t. अभी मुझे पता है IRMS होता है I नॉट बाय रूट 2. सो I नॉट बाय रूट 2 इक्वल टू I नॉट इनटू साइन 2 पाई f t. सो I नॉट कैंसिल, इधर 1 बचेगा, इधर बनेगा 1 बाय रूट 2. तो साइन को यहाँ पे ले लो तो क्या मिलेगा? देयरफॉर साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 2 पाई f t. ठीक है, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 कितना होता है? पाई बाय 4. तो पाई बाय 4 इक्वल टू 2 पाई f t. सो पाई पाई कैंसिल. ठीक है, सो मुझे t चाहिए तो t कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 2 8 f. f का वैल्यू दिया है गिवन में, f का वैल्यू दिया है 50. सो 1 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 50. सो देयरफॉर t विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 400. 1 डिवाइडेड बाय 400 को सॉल्व करो तो मिलेगा 0.25 पावर माइनस 2 सेकंड. दैट इज योर आंसर. पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा. 21. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर. C का वैल्यू पता करना है. L का वैल्यू दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी. So that is 101.4 into 10 का पावर माइनस 6 हेनरी. विद फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1 मेगाहर्ट्ज. मेगा कितना होता है? मेगा होता है 10 का पावर 6 हर्ट्ज. ठीक है, लड़की का नाम नहीं है मेगा, यहाँ पे मेगा मतलब 10 का पावर 6. सो आई नो दैट f इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट LC फॉर्मूला है. इसका स्क्वायरिंग कर दो. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
तो क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, ठीक है। सो देयरफॉर सी कितना हो जाएगा, 1/f स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल। सो देयरफॉर नाउ पुट द वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय f का स्क्वायर, 10 का पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का पावर 12, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू एल, एल का वैल्यू 101.4 इंटू 10 का पावर -6। इसको सॉल्व करो, ये आंसर है। पीको का मतलब कितना होता है, पीको का मतलब होता है 10 का पावर -12, तो तुम्हारा आंसर जो है वो 10 के पावर -12 में आना चाहिए, ठीक है। 22 and 23 are similar, so okay, I have taken them on the same slide. So first one they have been given 10 given to you, 25 volt V is given to you, 100 millihenry L is given to you, calculate the maximum current I। तो फॉर्मूला है 23 एंड 22 दोनों में एक ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि एल आई स्क्वायर इक्वल टू सी वी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ से मुझे आई निकालना है, सो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी वी स्क्वायर अपॉन एल, सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सी वी स्क्वायर अपॉन एल। तो फर्स्ट वाले केस में सी का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, सो वैल्यू डाल देंगे, सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पूरा सी के जगह पे आएगा 10 इंटू 10 का पावर -6 इंटू वी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर वी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाय एल, एल का वैल्यू कितना दिया 100 मिली, मिली कितना होता है, मिली होता है 10 का पावर -3। तो इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा आंसर 0.25 एम्पियर। सेम फार्मूला, यही सेम फार्मूला यूज करना है 23 में भी। तो 23 में क्या दिया, अगेन सी का वैल्यू दिया है 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 50 वोल्ट वी का वैल्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिए करंट का वैल्यू, यहाँ पे पता कुछ और करना है, यहाँ पे एल पता करना है, तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो दिस इज 22 हियर एल टू 23, सेम फॉर्मूला, एल पता करना है, सो एल हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करो, रीअरेंज करो, एल हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 100 इंटू 10 का पावर -6, वी का स्क्वायर दैट इज 2500 है ना, 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाय आई का स्क्वायर, आई कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 टाइम और ये हो जाएगा 100 टाइम, 10 का पावर 1 2 3 4, 10 का पावर 4 -6, 10 का पावर 4 -6 कितना हो जाएगा 10 का पावर -2 हेनरी, 10 का पावर -2 मतलब 0.0, तो दैट इज योर फाइनल आंसर 10 का पावर -2 हेनरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसी सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू फॉर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड